Hello, my dear friends. Welcome to today's video. Today's video is for the aspirants of UKPSC lecturer exam, subject English, and we have the notes of subject chemistry also. So these are the notes we I have prepared from different sources. As you know, it's very difficult to prepare from a single or just one or two books, especially in English. You need a lot of efforts to collect notes and to collect information, important informations of this topics from different sources. So I have put a lot of efforts to collect these notes, and these notes will definitely help you to clear this examination. So all you know, you or we always have a problem that how to study and which book we should study. So you shouldn't worry about that. These notes are going to be helpful for you for this examination. And as far as I think, these notes, if you are very serious about your preparations, अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है तो उसी के लिए नोट्स हैं. एंड आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट दीज नोट्स आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. यू हैव टू पे 999 for these notes, and this offer is only for the students who sorry aspirants who top 20 aspirants. After that the offer will be for 1499. इसके बाद 1499 रुपये के ये नोट्स हो जाएंगे. ये इसलिए मैंने किया है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सॉरी क्योंकि जब हम किसी चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं तो उसकी वैल्यू होती नहीं है. ठीक है. तो आई एम गोइंग टू गिव यू ग्लिम्स ऑफ द नोट्स. किस तरह के नोट्स हैं आपको पता लग जाएगा. ये आपके पूरे जो सिलेबस है आपका इंग्लिश का उसको अच्छे से कवर करेंगे, और 95% सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाएगा इफ़ यू विल study these notes and revise these notes. Then you will definitely clear the examination, I hope. So मैं आपको नोट्स की कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ किस तरह से मैंने नोट्स को प्रिपेयर किया हुआ है. तो ये कुछ नोट्स हैं. सपोज़ यू आर गोइंग टू स्टडी जॉन कीट्स. तो जॉन कीट्स के बारे में, व्हेन ही वाज बोर्न, एंड these are important information collected from different sources, friends. So it's these notes are going to be very helpful. Okay. जॉन कीट्स के बारे में हम देख सकते हैं कि prominent in the second generation of romantic poets. क्वेश्चन आ जाता है कि टू विच जनरेशन जॉन कीट्स बिलोंग टू, और विद इसके साथ और कौन राइटर थे, लॉर्ड बायरन एंड पी.वी. सैली. His poems were in publication for only 4 years before he died of tuberculosis at the age of 25. तो ये क्वेश्चन आ जाता था, what was the reason of his death. ठीक है. His poems were not generally well received by critics in his lifetime, but his fame grew after his death. जब तक वो जीवित थे तब तक इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता था, और बट जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद इन्होंने बहुत फेम प्राप्त की थी. इट हैड अ स्टाइल heavily loaded with the sensualities, notably in the series of odes. तो स्पेशली acclaimed जो इनके odes थे वो थे Ode to a Nightingale, Sleep and Poetry. तो इस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में टू द पॉइंट जो है नोट्स को प्रिपेयर किया गया है. ये आप देख सकते हैं, जॉन कीट्स का ही है ये. ठीक है. मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींची हुई है. दीज आर नॉट द complete notes. These are just for overview. If you want to purchase, then you can uh, WhatsApp me. ठीक है. You can text me in my WhatsApp number. I will give you my WhatsApp number at the end. So these are the notes. ये आप देख सकते हैं. इज़ाबेला इनकी एक पोएम है, द पोर्ट ऑफ बैसिल. नैरेटिव पोएम है. You
can see Lamia, a narrative poem, another narrative poem written in 1819. ठीक है, फर्स्ट पब्लिश इन जुलाई 1820. सो उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, दीज आर फेमस लाइन्स ऑफ हिज पोएम्स. ये उनकी पोएम की फेमस लाइन्स हैं. देन वर्ड्सवर्थ. तो जो आपके यूनिट वाइज हैं उसी हिसाब से नोट्स भी बने हुए हैं. तो वर्ड्सवर्थ के बारे में आप देख सकते हैं. These notes are going to be very helpful for you if you are really serious about your preparations. तो ये आपके नोट्स हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं. जो इमॉर्टलिटी ओड है इनका काउलियन ओड होता है. ठीक है, इस ओड में क्या होता है, इरेगुलर राइम होती है. अब्राहम काउली वाज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस एंड इरेगुलर नो नंबर ऑफ लाइन्स और लेंथ होती है इसमें. देखो बैलेट क्या होता है ये भी आपका सिलेबस में है. ठीक है, तो उस पर भी मैंने कंसाइज फॉर्म में इनको तैयार किया है और टू द पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स. आप यहाँ देख सकते हैं. फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे इसमें. ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स. In which year was George Bernard Shaw awarded the Nobel Prize? 1925. E.M. Foster's A Passage to India 1924 में लिखा गया. डील्स विद, किस चीज़ से डील करता है, रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. द जैकोबियन एज कवर्स द पीरियड 1603 to 1625. कैरोलाइन एज. कॉमनवेल्थ रिजीम अंडर क्रॉमवेल कवर्स. यू सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. देन अगर आपको चीज़ जैसे विक्टोरियन एज के बारे में टू द पॉइंट है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और कंसेप्ट्स हैं उस एज के वो बताया गया है. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नेशनल ग्लैमर and glory, national pride and patriotism, progress and prosperity, the Victorian age was equivalent to the Elizabethan age. ठीक है, तो you can see ये विक्टोरियन एज के बारे में है. these are the famous lines of Tennyson about Victorian age. तो ये भी क्वेश्चन आता है, who wrote these lines and about विच एज दीज लाइन्स हैव बीन रिटन, किस एज के बारे में लाइन लिखी गई है. तो दीज आर वेरी फेमस लाइन्स फ्रॉम द पोएम ऑफ टेनिसन. लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम more to more, but more of reverence in us dwell, that mind and soul according well may make one music as before. तो अगर आपको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता भी पड़ेगी तो आई विल एक्सप्लेन दीज नोट्स फॉर यू. थॉमस हार्डी दूसरी यूनिट से, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड. ठीक है, इनका एक पेस्टोरल नॉवल है. तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ लिखे हैं. स्टोरी को भी हल्का सा एक्सप्लेन किया गया है इसमें क्या होता है. यू कैन सी इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ थॉमस हार्डी. ठीक है, सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज़ एंड आपको अभी तक ये लगता था कि कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से इंपॉर्टेंट नोट्स कलेक्ट होंगे, देखो चार्ल्स लैम्ब एसेज में. तो these notes are going to be very helpful to you, and I have collected these notes. I have prepared these notes from different sources. And I want to make it clear to you that I cleared LT examination. I was topper there and lecturer also. So ये देखो चार्ल्स लैम्ब. वैसे इसमें एक्सप्लेन करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है. दीज आर वेरी कंसाइज फॉर्म एंड वेरी नीट एंड क्लीन नोट्स. आपको सारी चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी. फ्रांसिस बैकन, जो उनके एसेज हैं, साइंटिफिक वर्क्स हैं. एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605, फर्स्ट इंटेलेक्चुअल वर्क ऑफ बैकन. क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ वर्क ऑफ बैकन। ठीक है, ये किसके लिए लिखा था उन्होंने, तो ये क्वेश्चन आता है। टू होम ही डेडिकेटेड दिस और रिटन दिस, तो रिटन इन लेटर फॉर्म टू किंग जेम्स फर्स्ट के लिए। व्हाट वाज द इनकम्प्लीट नॉवल ऑफ फ्रांसिस बैकन, न्यू एटलांटिस। ये क्यों इनकम्प्लीट रह गया था, ड्यू टू हिज डेथ। ठीक है ना। इट इज़ अ फिलोसॉफिकल रोमांस, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट टाइप ऑफ नॉवल दिस इज। तो उसके बारे में डिटेल में भी लिखा हुआ है। as per the need of the need of the examination, these notes has been prepared. So thank you, and if you are interested, then note down my number. My WhatsApp number is 9897473132. 9897473132. You can, don't call me, you just have to WhatsApp me, and if you are interested, then you have to pay me first, and then I will send you the PDF of the notes.